تنور مالکان روٹی کی قیمت میں اضافے کے لیے پر تولنے لگے۔ گیس کی قیمت میں اضافے کے بعد روٹی 25 اور نان 35 روپے میں فروخت کرنے کا اعلان متوقع۔ تنور مالکان نے کہا مہنگی گیس کی وجہ سے روٹی سستی فروخت نہیں کر سکتے۔ شہر بھر میں گیس کی آنکھ مچولی جاری۔ لاہور کے متعدد علاقوں میں گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات۔ کوئی ناردرن گیس مختلف علاقوں میں 30,000 میٹر لائن بچھائے گی۔ منصوبے پر 2 ارب روپے لاگت آئے گی۔ اوگرا اور ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز میں مذاکرات کا دوسرا دور ختم۔ ملک گیر ہڑتال 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دی گئی۔ عرفان کھوکھر نے کہا ہماری اولین ترجیح اوگرا کی ریٹ قائم کرنا ہے، مافیا کو کسی صورت سر اٹھانے نہیں دیں گے۔ شدید گرمی اور حبس میں بجلی کی طلب میں ہوشربا اضافہ۔ لیسکو کو 350 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 5 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، شہری پریشان۔ پکائیں کیا اور کھائیں کیا، چکن، سبزیاں اور پھل مزید مہنگے۔ منافع خوروں نے بھی عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ خاموش تماشائی بن گئے۔ مرغی کا گوشت 552 روپے فی کلو ہو گیا، انڈے 280 روپے درجن دستیاب۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ریکارڈ کو کمپیوٹرائزڈ کرنے میں ناکام۔ 2014 میں گلبرگ، مصطفیٰ ٹاؤن، ایل ڈی ایونیو 1 اور جوبلی ٹاؤن کا ریکارڈ آن لائن کیا گیا، مگر اس کے بعد 10 اسکیمز کی کمپیوٹرائزیشن کا کام بند ہو گیا۔ شہری ٹرانسفر اور مختلف سرٹیفکیٹس کے حصول کے لیے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور۔ زرعی ترقیاتی بینک کے افسران ریکوری میں ناکام۔ 30 ارب 94 کروڑ کے بجائے صرف 6 ارب 35 کروڑ جمع کرائے جا سکے۔ بینک کی جانب سے دیے گئے 1.5 کروڑ روپے کے قرض کی فائلز بھی غائب ہو گئیں۔ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، صوبائی کابینہ نے تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ گریڈ 1 سے 16 تک 35% اضافہ منظور۔ گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کے لیے 30% اضافہ منظور کیا گیا۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 17.5% اضافہ منظور کیا گیا۔ جنرل ہسپتال میں زیر علاج تشدد کا شکار رضوانہ کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ پروفیسر فرید الظفر کہتے ہیں خون میں انفیکشن کم ہو گیا ہے۔ پلیٹلیٹس کی تعداد 1,05,000 ہو گئی ہے۔ میڈیکل بورڈ جلد سرجری کے مرحلے کا آغاز کرے گا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے رضوانہ کی قانونی تحویل حاصل کر لی۔ چیئرپرسن بیورو سارا احمد کہتی ہیں رضوانہ کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ صحت یابی کے بعد رضوانہ کی تعلیم کا انتظام کریں گے۔ پولیس کے شہداء کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ آج یوم شہداء پولیس منایا گیا۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے جوانوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اپنے لخت جگر وطن پر قربان کرنے والی ماؤں کو بھی سلام۔ سی سٹی نے خصوصی ویڈیو جاری کی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا شہداء کو خراج عقیدت، کہا ملک کی خاطر جانوں کے نذرانے دینے والے شہداء ہمارا فخر ہیں، قوم ان کے خاندانوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ پولیس شہداء کی عظیم قربانیوں پر قوم کو فخر ہے۔ پولیس نے قیام امن کے لیے ہمیشہ مثالی خدمات انجام دیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا یوم شہداء پولیس پر پیغام، کہا شہداء کے خاندان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ یوم شہداء پولیس، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ آمد۔ محسن نقوی نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، آئی جی، سی سی پی او بھی ہمراہ تھے۔ شہداء پولیس کو کمشنر محمد علی رندھاوا کا خراج عقیدت، کہا آج قوم کے بہادر جوانوں کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ الحمرا ہال میں یوم شہداء پر پروقار تقریب،
CCPO बिलाल सिद्दीक कोम्याना और शहदा की फैमिलीज शरीक हुई। IG पंजाब का शहीदों के वर्सा को सलाम। डॉक्टर उस्मान अनवर ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए। हम आपकी मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत की दीवानगी में, आपसे इश्क में हम नहीं रुकेंगे। आज इन 24 घंटों में हम आपके वेलफेयर फंड में और हर आने वाले 24 घंटे में हम आपके वेलफेयर में इन कोशिशों की वजह से 1,25,00,000 रुपए का इजाफा कर रहे हैं। शहदा हमारा कीमती असासा हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का यौम शहदाए पुलिस पर पैगाम। कहा, शहदा की जुर्रत और बहादुरी हमारे लिए मशअल राह है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद ने कहा, शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। SP ट्रैफिक सुहेल फासिल की शहीद तनवीर इकबाल की कब्र पर हाजिरी, कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहख्वानी की। शहीद तनवीर इकबाल ने श्रीलंकन टीम की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया था। CTO लाहौर की शहीद DIG सैयद अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी, पुलिस के चौको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। अपने पैगाम में मुस्तनसिर फिरोज ने कहा, यौम शहदाए पुलिस तजदीद अहद का दिन है। हमें क़याम अमन के लिए शहदा की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का जिना हाउस का दौरा, वकला, सहाफ़ी बरादरी, डॉक्टर और तलबा का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। सानिहा 9 मई पर इजहार अफसोस, कहा पाक फौज ही हमारी रेड लाइन है। वफ़द का सानिहा 9 मई के किरदारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा। जिना हाउस और इसको देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, दुख हुआ है। घर का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। आज हमने जिना हाउस का विज़िट किया है और हमें ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। जो भी 9 मई को हुआ हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हमारी दुआ है कि इसके बाद कोई भी इस किस्म का वाक़या दोबारा पेश ना आए। इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घेराव का केस यास्मीन राशिद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने जुडिशल रिमांड में 17 अगस्त तक तौसीह कर दी। पुलिस को चालान जल्द जमा कराने की हिदायत। PTI ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मजीद 8 रहनुमाओं को पार्टी से निकाल दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत से बरतरफी के नोटिस जारी, पार्टी का नाम और ओहदा इस्तेमाल करने से गुरेज करने की हिदायत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी। PTI कारकुनान की बड़ी तादाद IPP में शामिल। सीनियर रहनुमा मियां खालिद महमूद से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया गया। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सियासी तशख़्ख़ुस की बहाली के लिए मुतहरिक। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम फ़ज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस 10 अगस्त को होगी। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से रहनुमा और कारकुनान शिरकत करेंगे। 14 अगस्त को जमीयत अहले हदीस के ज़रिए एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान रैली निकाली जाएगी। उस्मान बुज़दार की अदम पेशियों के बावजूद नैब पीछे न हटा। साबिक वज़ीर आला आज फिर तलबी के बावजूद पेश न हुए। नैब ने रिकॉर्ड समेत तलब कर रखा था। उस्मान बुज़दार के खिलाफ असद सजाद समेत तकर्रुर और तबादलों में करप्शन की तहक़ीक़ात जारी हैं। SDO जिया मूसा सब डिवीजन अजहर बलोच की गाड़ी पर फायरिंग। थाना शाहदरा पुलिस ने दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। फायरिंग से SDO मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बजट की मंजूरी। सर्विसेज हस्पताल की अपग्रेडेशन से मुतालिक अमूर का जायजा लिया। हस्पताल की अपग्रेडेशन का मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शाहदरा के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। टीचिंग हस्पताल में अमले की कमी पर मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट और शाहदरा थाने भी गए, इंतजामात का जायजा लिया।
दाता दरबार की तौसीक़ के लिए कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। कमिश्नर लाहौर का कहना था दरबार को तौसीक़ देने के लिए 17 केनाल 4 मरले अराजी मज़ीद शामिल की जा रही है। तौसीक़ मनसूबे पर सब मुत्तफिक हैं। LWMC का माहौल दोस्त इक़दाम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर के साथ मुआहदा। सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च और इंटरनेशनल ग्रोथ सेंट्रल LWMC को पॉलिसी बनाने में मुआवनत फराहम करेगा। सैलाब मुतासरीन के लिए पीने के पानी का बड़ा मनसूबा। पंजाब आब पाक अथॉरिटी ने यूनिसेफ के ताउन से मनसूबे की बुनियाद रख दी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आब पाक सैयद जाहिद अजीज़ कहते हैं नौ देहात को महफूज पानी मैसर होगा। 40,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को पीने का पानी फराहम करेंगे। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब की ज़ेर सदारत डेंगू के तदारुक बारे इजलास। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने खिताब में कहा माहौलियाती पाकीज़गी के लिए सोसाइटी भी किरदार अदा करे। हिफाजती तदाबीर का इख्तियार करना बेहद ज़रूरी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला शकील अहमद मियाँ का AG जेल खाना जात का दौरा। एडिशनल सेक्रेटरी जेल खाना जात सैयद हसन रज़ा के हमरा थे। मियाँ फारूक नज़ीर ने परतपाक इस्तकबाल किया। जेलों में यूटिलिटी स्टोर्स कायम करने का फैसला। कैदियों के लवाहिकीन और जेल मुलाजमीन के अहले खाना खरीदारी कर सकेंगे। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से खुसूसी हेल्थ कैंप। बच्चों और बड़ों की खुराक और उनकी सेहत का मुआयना किया गया। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम ने भी कैंप का दौरा किया। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम थीसिस शो का दूसरा रोज़। आर्किटेक्चर प्रोग्राम के तलबा के थीसिस नुमाइश के लिए पेश किए गए। शुरका तलबा का काम देख कर तारीफ किए बगैर न रह सके। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का अलहमरा आर्ट गैलरी का दौरा। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन के तलबा के थीसिस डिस्प्ले का जायज़ा लिया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम भी हमरा थे। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम महकमों में जश्न आज़ादी प्रोग्राम्स और शेड्यूल्स तलब। कमिश्नर ने तमाम महकमों के अफसरान को अहदाफ दे दिए। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा हुजूरी बाग में जश्न आज़ादी की मेगा तकरीब मुनक्किद होगी। शहर भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर। बाजारों में सब्ज़ हिलाली परचम, झंडियां और मुख्तलिफ सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। जश्न आज़ादी मनाने के लिए बच्चों और बड़ों का जोश दीदरी। कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत। सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तानी वफ्द का अगस्त के आखिरी हफ्ते में भारत जाने का इम्कान। वफ्द भेजने का फैसला वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। सिक्योरिटी का मामला ICC में भी उठाया जाएगा।